ਲਾਈਵ ਛੋਰੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਔਨ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਲ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਆਦਾਬ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਨ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਲਾਈਵ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਂਡ ਟੀਵੀ। ਆਬਵੀਅਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਟਵੀਨ 1 to 3। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਔਰ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਈਵ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੈਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦ ਡੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਡੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਓਪਨ ਹੈ ਜਾਂ ਓਪਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਥਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਖੈਰ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ। ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਕਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਰਕਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਪਲਸ ਫੇਸ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜਿਸਟ ਅਵਲੀਨ ਖੋਖਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਈਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਝਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਲੈਮਿਸ਼ਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਵਲੀਨ ਖੋਖਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਵਲੀਨ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸਟੂਡੀਓ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਖਾਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਵਿਚ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਜਿਹੜੀ क्योंकि हिंदी जड़ी है हर कोई समझ लेता है। सो खैर, कैसा रहा आपका दिन? बहुत बढ़िया, और आते ही आपकी इतनी खूबसूरत बातें सुन के और भी अच्छा हो गया। सो खैर, वेल, थैंक यू टू यू कि मेरे को इतना अच्छा आपने रिजल्ट दिया जो लास्ट टाइम मैंने आपसे हाइड्रा फेशियल लिया। सो ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे इसने कोई रिश्वत नहीं दी अवलीन ने। सो आप भी देख रहे होंगे मेरे स्किन में डिफरेंस। आप थैंक यू, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे ये ट्रीटमेंट करवा के, और मैं चाहती हूँ कि जितनी भी हमारी बहनें या लड़कियां, गर्ल्स सुन रही हैं, किसी को भी ट्रीटमेंट चाहिए तो वो ज़रूर आपसे रब्ता कायम करें। सो अवलीन, आज की जो चर्चा होने वाली है वो होने वाली है छाइयों के बारे में, ब्लैमिशेस के बारे में, पिगमेंटेशन के बारे में। सो पिगमेंटेशन और छाइयाँ, इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, हम सभी पिगमेंटेड है। हमारी सभी के शरीर में स्किन के अंदर जो ब्राउन पिगमेंट है, मेलानिन, अगर वो है तो हम सभी पिगमेंटेड है। लेकिन कई रीजंस हैं, जैसे कि हार्मोन्स, कोई चोट लग जाए, या सन ट्रिगर करता है, तो कई रीजंस हो सकते हैं जिससे अचानक ये पिगमेंट किसी किसी एरिया में बढ़ जाता है, उसे हम हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। सो पिगमेंटेशन होना इज अ गुड थिंग, थैंक गॉड वी आर पिगमेंटेड। अगर हम एल्बिनो होते, आपने देखे होंगे सफेद सूरजमुखी लोग, उनमें पिगमेंट होता ही नहीं है, राइट? तो वो एक इशू है, एक प्रॉब्लम है। लेकिन हमारा पिगमेंटेड होना हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। और हम जितने ज्यादा पिगमेंटेड हैं, यानी कि हम ब्राउन है या ब्लैक है, ये लोग बहुत ज़्यादा सेफ हैं, क्योंकि एक्चुअली मेलानिन या ये ब्राउन पिगमेंट जो हमारे शरीर में मौजूद होता है, ये हमारी त्वचा के लिए डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, राइट? सो ये आपकी त्वचा के अंदर है, तो ये आपको स्किन कैंसर, स्किन की बर्निंग और एजिंग से बचाता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं सनस्क्रीन नहीं लगाता या सनस्क्रीन नहीं लगाती, मैं घर में हूँ, लेकिन आप रेडिएशन में हैं, आपके ऊपर सनलाइट आ रही है, राइट? हर तरह से यूवी रेज अफेक्ट कर रही हैं। सो जैसे ही आपकी त्वचा के ऊपर सन रेज, रेडिएशन या किसी भी तरह की लाइट प्रोसेसेस पड़ेंगे, तो आपकी त्वचा का नेचुरल मेलानिन, नेचुरल सनस्क्रीन बढ़ जाएगा। सो ये आपकी त्वचा के अंदर का सनस्क्रीन है, राइट? हम इस भुलेखे में या इस इग्नोरेंस में कि मुझे नहीं जरूरत, मैंने कभी लगाया नहीं, बड़े लोगों को मैंने सुना है, तो क्या हो रहा है उसका इफेक्ट कि आपकी त्वचा का अपना नेचुरल सनस्क्रीन बढ़ रहा है, जिससे आपकी त्वचा अनइवन भी हो सकती है, स्किन बर्न भी हो सकती है। यूजुअली ब्राउन लोगों में स्किन बर्न नहीं होती, टैन होती है। अगर आप वाइट हैं, कोकेशियन हैं, आप बहुत ज़्यादा कम मेलानिन वाले हैं, तो आपकी स्किन आप देखेंगे कि बहुत रेड होके फिर ब्राउन
जल जाएगी। हाँ जी। लेकिन हम लोगों में ये ग्रेस है कि हमारे में इतना पिगमेंट है कि हम जलते नहीं है, लेकिन हमारी स्किन बहुत प्रॉन हो जाती है, लाइक ब्राउन स्पॉट्स, झाइयाँ, पिगमेंटेशन, जिसे आम भाषा में बोला जाता है। मेरे को इसी पे एक जोक आया जब आपने बोला हम जलते नहीं हैं लेकिन हम जला देते हैं। हम जला देते हैं अपनी खूबसूरती से, अपनी खूबसूरती से, अपनी बातों से। लेकिन जलना नहीं चाहिए। कहते हैं ना, जलना नहीं चाहिए, कोशिश करनी चाहिए और आगे निकलने की कोशिश होनी चाहिए कि अगर ये इंसान कम तरक्की कर सकता है तो क्यों ना मैं भी करूं। बिल्कुल, राइट, ये सोच होनी और चाहिए। हम तो बीइंग अ माइंड थेरेपिस्ट, मैंने तो ये चीज़ हमेशा से अपने क्लाइंट्स को बोली है कि आप जितना खुश हैं आप वैसे ही एज कर रहे हैं। अगर आप हमेशा परेशान रहते हैं तो आप देखेंगे आपकी एक्सप्रेशन लाइंस ड्रूपी हो जाएंगी। हाँ। और आप एक्सप्रेशन से भी आपको लगेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत खुशी वाले माहौल में गए हैं और एक सैड, सारी जिंदगी का सैड फेस है, उसके एक्सप्रेशन जैसे होंगे तो वो हंसेगा भी, उसे हेलो हाउ आर यू, कांग्रेचुलेशंस। ऐसे लोग हमारे जैसे, आपके जैसे एक्चुअली, जो हमेशा ही खुश रहते हैं, उनकी हाई चीक बोन्स हो जाती हैं, उनकी एक्सप्रेशन लाइंस भी अप हो जाती हैं, लाइक दे आर स्माइलिंग फेसेस। तो वो कई बार मुसीबत में भी आ जाते हैं, किसी सैड जगह पे कोई कुछ कंसोल करने गए हैं तो उनको इतने हैप्पी फीचर्स हैं, दे कांट बी सैड। सो व्हाट यू थिंक यू बिकम दैट। और खूबसूरती का तो बहुत ही ज्यादा हाथ है उसमें कि जो आप सोच रहे हैं वो आप बन रहे हैं। और या फिर जो ज़्यादा खुश रहने वाले इंसान होते हैं वो अगर कभी नाराज़ हो जाएं या दुखी हो जाएं तो लोग बिलीव नहीं करते कि वाकई ये दुखी है, बीमार में तो है ना, लगता ही और नहीं, वो अच्छा तो नोटिस हो बीमार जाता है, बहुत जल्दी नोटिस हो जाता है। ऐसे जो हमेशा दुखी रहता है उसको कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन जो खुश रहने वाला इंसान है अगर वो कभी निराश हो जाए, नाराज़ हो जाए तो वो जल्दी नोटिस में आता है और हर कोई उससे पूछने लग जाता है क्या हुआ क्या हुआ। और कई बार ये इसका साइड इफेक्ट मैं कहूंगी कि आप बीमार हो और आप कह रहे हो हाँ मैं बीमार हूँ, मेरे को बुखार हो गया, अच्छा लग तो नहीं है। क्योंकि दूसरा इंसान सोचता है कि ये तो हमेशा हंसने खेलने वाला है, इसको क्या हो सकता है, पर वो ये नहीं याद रखते कि ये भी तो एक इंसान है हमारे जैसा, राइट। सो खैर, जो आपने ये पिगमेंटेशन का भी बताया उसके लिए हमें सनस्क्रीन जरूर यूज करना चाहिए। सनस्क्रीन लगाना बेहतर है, क्योंकि अगर आप नहीं चाहते कि आपकी त्वचा के अंदर का नेचुरल सनस्क्रीन बढ़े और आपकी त्वचा लाइक अनइवन हो जाए या डार्क हो जाए, सो ये बेहतर रहता है कि एक अच्छा सनस्क्रीन आप लगाएं। और सनस्क्रीन लगाने का भी तरीका है, देखिए कहा गया है कि एक अच्छा सनस्क्रीन आपका बेस्ट एंटायर एजिंग है। सो अगर आपने सनस्क्रीन लगाया तो इट इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर। जब आपकी त्वचा का मेलानिन नहीं बढ़ रहा, आपकी एक क्रीम की एक लेयर है वो आपके त्वचा के अंदर के लिपिड्स और वाटर और हाइड्रेशन को इवेपोरेट नहीं, क्योंकि सूरज आपको दो तरह से नुकसान दे रहा है, उसकी यूवी रेज और उसकी हीट, दोनों चीज़ें आपकी त्वचा को दो अलग तरीके से स्पॉइल कर रही हैं। बिल्कुल। सो अगर आप सनस्क्रीन लगाते हैं तो आपके अंदर के लिपिड्स और आपके अंदर के हाइड्रेशन को इंटैक्ट भी रखेगा। इसके अलावा वो आपकी त्वचा में नेचुरल जो सनस्क्रीन है उसे बढ़ने से रोकेगा, क्योंकि आपने आर्टिफिशियल सनस्क्रीन लगा रखा है। बिल्कुल। सो इन अ वे आप अपनी त्वचा को एक इवन टोन्स देने में आप बहुत हद तक कामयाब हो सकेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर बात की जाए छाइयों की या ब्लेमिशेस की, जिनको ब्लेमिशेस भी कहा जाता है, तो ये होने के क्या रीज़न होते हैं? क्योंकि अक्सर जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो ज़्यादातर वो ये प्रॉब्लम फेस करती है, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि यंग एज में भी किसी किसी को ये हो जाता है तो उसको कहा जाता है कि भी तो आयरन ज़्यादा खा इसलिए हुआ है, या ये है या वो है। तो आप बताएं कि क्या रीज़न हो सकते हैं इन चीज़ों के और किस एज में ज़्यादा देखी जाती हैं? देखिए बेसिकली हमें ये जानना है कि कौन सी तरह की हाइपर पिगमेंटेशन आपको परेशान कर रही है। ज़्यादातर लाइक 5 तरह की मैक्सिमम लाइक माना गया है कि ये बड़ी पिगमेंटेशंस हैं। एक होती है टैनिंग। टैनिंग को पहचानने का सबसे बड़ा तरीका है कि आप अपने एक्सपोज्ड एरिया और आपके कवर्ड एरिया में एक लाइन का डिफरेंस आ जाता है। सो टैनिंग है अगर आपको तो ईजिली क्योरेबल है, उसमें आपको कोई लाइक इफ एंड बट नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी त्वचा जो कवर्ड एरियाज हैं उससे आपका एक्सपोज्ड एरिया डार्क हो रहा है तो इसका मतलब आपको सनस्क्रीन की ज़रूरत है। आपकी त्वचा आपका डिफेंस मैकेनिज्म पे काम कर रही है। सो बेहतर यही है कि जैसे ही अगर आपको लगे कि अनइवन टोन्स आ रही हैं, 2 टोन्स आ रही हैं आपकी त्वचा पे, आप एक्सपोज्ड एरियाज पे एक अच्छी सनस्क्रीन लगाएं और हर 3 घंटे के बाद रीअप्लाई करें, बिकॉज 3 घंटे में 3 घंटे 4 घंटे तक एक अच्छा सनस्क्रीन आपकी त्वचा को पूरा एफिकेसी के साथ प्रोटेक्ट करता है। एंड देन यू नीड टू रीअप्लाई इट, राइट। दूसरी तरह की बड़ी कॉमन हाइपर पिगमेंटेशन होती है, तिल बन जाते हैं, राइट। फ्रेकल्स डिफरेंट है और ये लेंटिगोस जो तिल होते हैं वो डिफरेंट है। तिलों का इलाज हम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम जो उसकी रेकरेंस है या और बढ़ने से रोक सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये यंग एज में बहुत जल्दी से स्टार्ट हो सकते हैं, इसका मतलब आप हाई यूवी इंडेक्स एरिया में हैं। हम कनाडा में रहते हैं, यहाँ पे यूवी इंडेक्स हमेशा ही हाई रहता है, सो इसका मतलब हम बहुत प्रॉन है यूवी रेज को। सो यंग एज में अगर आप देखें कि आपके चेहरे पे तिल बनने शुरू हो गए हैं, सो इसका एक्चुअल इलाज तो सिर्फ बर्निंग ऑफ मोल्स है, लेकिन वो हर कोई नहीं कराना पसंद करता और बहुत ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो बेस्ट है कि आप अपनी त्वचा को सन से प्रोटेक्ट करें। इसमें सिर्फ सनस्क्रीन ही काम नहीं करता, बिकॉज सन के कारण ये बड़ी जल्दी ट्रिगर होते हैं। तो आप अपने को हैट लगाएं, चश्मा लगाएं,
कवर करके चलें सो दैट आपके तिल ज़्यादा ना बने। ओके। फिर एक और बहुत ही कॉमन तरह की पिगमेंटेशन होती है, जिसे आपने अभी कहा कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसको छाइयाँ बोलते हैं। आम भाषा में झाइयाँ बोलते हैं, पर एक्चुअली इसे हम क्लोएज़मा या मेलाज़मा बोलते हैं। Okay. जब ये पूरे चेहरे पे हो जाती है तो ये क्लोएज़मा कहलाती है। आप देखेंगे सिर्फ चीक बोन्स पे, Yeah. नोज पे, आईब्रोज के ऊपर और कभी कभी अपर लिप पे। Yeah. एक बटरफ्लाई के फॉर्म में ये बनती है, इसे बटरफ्लाई मास्क भी कहते हैं, इसे प्रेगनेंसी मास्क भी कहते हैं। सो ये ईस्ट्रोजन के कारण होती है, इसीलिए ईस्ट्रोजन को मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोला जाता है। सो ईस्ट्रोजन जैसे इम्बैलेंस होता है वो किन टाइम पे होता है? अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हो, बर्थ कंट्रोल पिल्स, Okay. अगर आप प्रेग्नेंट हो, अगर आपका मिसकैरेज या अबॉर्शन हुआ है, या आप मेनोपॉजल टाइम में हो, या आपका मेनोपॉजल हो गया या होने वाला है, तो ये एरियाज है जब आपका ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है। सो आपने कहा यंग एज में कोई आए इस तरह से कि इधर यहाँ पे पिगमेंट है, थोड़ा सा यहाँ पे पिगमेंट है, हाँ जी। सो आप कुछ चीज़ें खास पूछें कि आप बर्थ कंट्रोल पिल्स पे हो, क्या आपके पीरियड्स ठीक आते हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस तरह की पिगमेंटेशन के लिए। और ये एक ऐसी टफ पिगमेंटेशन है, इसके ऊपर कई बार लेजर्स भी इतनी आसानी से काम नहीं करते। ओके। यूजुअली 70 to 80% देखा गया है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो ये एक मास्क की तरह आपके चेहरे पे आती हैं, और 70 to 80% केसेस में ये विद डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी, जब आप लैक्टेशन पे जाते हैं तो ये धीरे 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 फेड ऑफ हो जाती हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये रह जाती हैं। ओके। कई बार आपने देखा होगा मीनोपॉज के दौरान ये अचानक झाइयाँ बन जाती हैं। अचानक लोग कहते हैं ओ मेरा मीनोपॉजल फेज शुरू है, मेरे यहाँ से कालापन आ गया, झाइयाँ आ गई, ब्लेमिशेस आ गई। सो उस टाइम पे भी ये बड़ा नेचुरल माना गया क्योंकि ईस्ट्रोजन के कारण है। सो इसका एक्चुअली बहुत सारे डॉक्टर्स तो कहते हैं कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इसका एक अच्छा इलाज है, लेकिन यू नेवर नो। सो कभी भी जब स्किन के ऊपर कुछ इफेक्ट आता है तो HRT बहुत ईजी नहीं मानी जाती, क्योंकि हार्मोन्स को छेड़ना ईजी गेम नहीं है। सो इसमें फिर लेजर्स काम करते हैं, कई बार केमिकल पील्स काम करती हैं, लेकिन ये ऑनगोइंग प्रोसेस है क्योंकि बॉडी के अंदर बनता ही जा रहा है। सो इसमें हम फेड कर सकते हैं, इनको कम कर सकते हैं, इन्हें स्कैटर कर सकते हैं, इन्हें और डार्क होने से रोक सकते हैं। ओके। और इसका फिर एक परमानेंट इलाज होता है मेकअप, कैमोफ्लेज कीजिए। एक और तरह की पिगमेंटेशन बहुत कॉमन देखी गई होगी कि यहाँ पे बाजू पे ओपन एरियाज में बहुत ज़्यादा क्लटर में पिगमेंट आ जाता है। नीचे वाला एरिया वाइट होगा आपका, यहाँ पे ग्रुप में पिगमेंट का डिपॉजिट हो जाता है। इसे मेलोडर्मा बोलते हैं। एक बहुत कॉमन पिगमेंटेशन है। आपके देखा होगा पीछे जो लोग डीप नेक्स पहनते हैं, बड़े बटरफ्लाई विंग्स की तरह दो पीछे भी आ जाता है। सो द बेस्ट थिंग इज सनस्क्रीन एंड कुछ अच्छे एक्सफोलिएशन कीजिए, कुछ अच्छे लेजर ट्रीटमेंट से इसका फर्क पड़ता है, और कुछ अच्छे हाइड्रा फेशियल से भी इसका फर्क पड़ता है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन एंड सन डैमेज। तो क्या ये प्रॉब्लम्स मेंस में भी देखी जाती है कि बहुत कम? लड़कों में यूजुअली सनबर्न बहुत कॉमन देखा गया है। एज स्पॉट्स, जिसके ऊपर मैं अभी आने वाली थी, एज स्पॉट्स या फ्रेकल्स मिलते जुलते हैं, लेकिन एज स्पॉट्स यूजुअली पोस्ट 40s में या 50s में शुरू होते हैं। वो थोड़े उभरे हुए होते हैं। आप देखेंगे एक पर्टिकुलर सर्टेन एज में आपके ढेर सारे चित्ती या फ्रेकल्स जैसे दिखते हैं, पर थोड़े अप्रेज्ड होते हैं। दे आर एज स्पॉट्स और प्रोटीन डिपॉजिट्स, राइट? फ्रेकल्स कैन बी इन एनी एज, इवन बच्चे को भी हो सकते हैं, बड़े को भी। वो लाइट स्किन्स में पाए जाते हैं, इन्हें एफिलाइट्स भी कहा जाता है। फ्रेकल्स का इलाज भी थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा हम इनको जला सकते हैं, बर्न कर सकते हैं, कॉटरी कर सकते हैं, एसिड पील्स के साथ कम कर सकते हैं, लेकिन इसका अगर एक्चुअल इलाज देखा जाए सन प्रोटेक्शन, क्योंकि सन ट्रिगर कर रहा है। आपकी बॉडी के सिस्टम्स ऐसे हैं, हार्मोन्स ऐसे हैं कि ये एक रीजन है, राइट, कोर इशू, लेकिन इसको ट्रिगर करता है सन और आपका लाइफस्टाइल एज वेल, राइट? सो बेहतर तरीका तो इन चीज़ों का ये कि एक अच्छी रिजीम अपनाई जाए। एक सनस्क्रीन आपकी मस्ट हैव होना चाहिए आपके बैग में। बिकॉज अक्सर हम लोग यही सोचते हैं कि सनस्क्रीन जो है, अगर हमने बीच के किनारे पे जाना है, कहीं बाहर धूप में घूमने जाना है, पिकनिक पे जाना है, तो वो लगानी है, हमने ऐसे नहीं लगानी। लेकिन सनस्क्रीन को आई थिंक हमें रोजाना की ज़िंदगी में जो है एवरी डे हमें आफ्टर द डे क्रीम हमें यूज़ करनी चाहिए। इतनी लाइट्स में हम बैठे हैं, आपको पता है हर लाइट में कितनी तरह की रेडिएशंस हैं। लाइट इटसेल्फ मेलानिन स्टिमुलेट करती है, किसी भी तरह की रोशनी। सो लाइट में है, आप ट्यूब लाइट में है, बल्ब में है, सन में है, हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन सन लाइट कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्ट होकर आ जाती है। यूवी रेज तो आ ही रही है ना। सो उनसे कंट्रोल करने के लिए द बेस्ट थिंग इज अ गुड सनस्क्रीन। सो घरेलू नुस्खे क्या कर सकते हैं इनके लिए? देखिए, बड़े सारे लोग मुझसे पूछते हैं घरेलू नुस्खे। मैं कहती हूँ अगर आप बेसन लगाने से, या कोई लोग नींबू लगा लेते हैं, दही लगा लेते हैं, आलू लगा लेते हैं, दही लगा लेते हैं, ओट्स के स्क्रब्स, ये आपकी सुपरफिशियल क्लेंजिंग कर देंगे। आपकी त्वचा को थोड़ी देर के लिए कंडीशन भी कर सकते हैं, ऊपर की मैल, डेड स्केल्स को थोड़ा सा हटा सकते हैं। पर अगर इन सब चीज़ों से आपकी त्वचा में इन झाइयों पे इफेक्ट पड़े, तो आज इतने बड़े बड़े ब्रांड्स क्यों?
जिन स्ट्रॉन्ग पैचेस के ऊपर लेजर तक नहीं काम कर सकता, उसमें आलू क्या काम करेगा सही या बात है। प्याज क्या काम करेगा। सो मैं बहुत ही साइंटिफिकली और लॉजिकल इंसान हूँ। मैंने बहुत पढ़ा है, ये चीज़ें कुछ हेल्प करती हैं कि आप घर में खाना बना रहे हैं तो चलिए आप टमाटर थोड़ा सा स्किन पे लगा लीजिए, आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाएगी। हाँ। अगर आपने आलू के स्लाइसेस लेके आंखों पे या आलू को ग्रेट करके आंखों पे लगा लिया तो थोड़ी देर के लिए आपकी आंखें रिलैक्स हो जाएंगी। ये आपकी त्वचा को पैसिफाई करता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। सो थोड़ी देर के लिए लाइट होगी, पर वो सुपरफिशियल है फॉर द टाइम बीइंग, राइट। सो अगर आप ये थोड़े थोड़े घरेलू नुस्खे करते हैं तो आप मान के चलिए कि दे जस्ट कंडीशन योर स्किन, मे बी सुपरफिशियली क्लीन योर स्किन एंड प्रोवाइड यू लिटिल, क्योंकि आपने पानी से ही मुंह धोया तो आपको लगता है ना कहीं पे मुंह साफ हो गया, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इलाज नहीं है ना, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है, इलाज है भी नहीं। हाँ। इट्स जस्ट अ चेंज, जस्ट चेंज, थोड़ा सा पॉलिशिंग या रबिंग या क्लीन हो जाती थोड़ी आपकी स्किन ऊपर की। घर के रिजीम में अगर आप कहें कि मैं घर पे अपने आप को कैसे ध्यान रखूं, तो मेरा सबसे पहले कि हमारा ब्यूटी मंत्रा क्या है, क्लेंस, टोन, प्रोटेक्ट एंड मॉइस्चराइज। ये 4 चीजें अगर आप कर रहे हैं तो आपकी त्वचा कई चीजों से सेफ है, राइट। अगर इंटरनली कुछ चेंजेस आ भी रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो भी रहे हैं, अंदर से कुछ बन भी रहा है, लेकिन अगर आपकी रजीम, आपकी एक स्किन केयर रजीम में कुछ 4 चीजें ये आपने शामिल की हुई हैं, तो आप उस डैमेज को कुछ हद तक डिले कर सकते हैं। लेकिन जो आना है वो तो पॉप आउट होना ही होना है, राइट। और अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट पे हैं, किसी पे आपका चल रहा है कोई ट्रीटमेंट, या फिजिकली आप अंदर से वीक हैं, आपकी इम्यूनिटी खराब है, आपकी बॉडी में जैसे B12 कम है, तो कई रीजन होते हैं स्किन के खराब होने के, राइट। आपके चेहरे पे अनइवन टोन्स बनाने के लिए, इसीलिए मैंने ये इन पिगमेंटेशंस को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया कि आप जाने पहले कि आपको है क्या। आपको एक साथ टैनिंग भी हो सकती है, आपको तिल भी हो सकते हैं, आपको फ्रेकल्स भी हो सकते हैं, आपको क्लोराइजमा भी हो सकता है। कई तरह की हाइपर पिगमेंटेशन एक ही इंसान को उनके कंसर्न्स हो सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप थायराइड, आपको प्रॉब्लम है, हाइपो या हाइपर किसी भी तरह का थायराइड है, तो आप देखेंगे आपके डार्क सर्कल्स बढ़ जाते हैं, आपकी त्वचा पे डार्कनेस आ जाती है, कुछ डिफरेंट तरह की अनइवन टोन्स होती हैं, राइट। सो अगर आप एंटीबायोटिक्स पे हैं, या अगर आपकी कीमोथेरेपी चल रही है, या अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग टॉक्सिक मेडिकेशन पे हैं, उसका इफेक्ट भी त्वचा पे आता है। त्वचा के अंदर के जो लिपिड्स हैं वो कमजोर हो रहे हैं। अगर आपने सडनली वजन लूज किया है तो आपकी त्वचा एकदम श्रिंक होती है, जैसी त्वचा श्रिंक होती है वो काली दिखती है, त्वचा एक्सपैंड होती है वो थोड़ी सी लाइटर दिखती है। बहुत सारे रीजंस है कि आपकी त्वचा में एक ग्लो, एक वाइट, एक जो आपको एक अनइवन टोन बेसिकली वो क्यों चाहिए। बिल्कुल। सो ऐसे में जैसे आपने पूछा घर में क्या करें, आई अंडरस्टैंड कि आप हर हफ्ते सैलून नहीं जा सकते, स्पा नहीं जा सकते, बिल्कुल। तो घर में आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी त्वचा के टेक्सचर के अकॉर्डिंग एक अच्छा फेस वॉश यूज करें, टोनर यूज करें। टोनर में मैं अक्सर कहती हूँ कि अगर आपको टोनर में दिमाग में कंफ्यूजन है कि क्या लगाएं, तो रोज वाटर से बेहतर टोनर नहीं होता। लेकिन मेक श्योर कि टोनर आपकी आंखों और स्किन के लिए लिखा हो, उस पे एडिबल हो। मैंने एक और कल पढ़ा है गूगल में कि एप्पल साइडर विनेगर जो होता है वो भी एक टोनर का काम करता है हमारी स्किन पर। टोनर का काम करता है, बट वो एसिडिक ज्यादा होता है नेचर में। हमारी स्किन अपने आप में एसिडिक नेचर में पाई जाती है, राइट। तो हमें कोई ऐसी चीज लगानी है कि जो मेरे त्वचा के पीएच बैलेंस को और खराब ना करे। आपकी त्वचा का पीएच 5.5, अगर इस पे आप कोई एसिडिक चीज लगाते हैं तो इट माइट गिव यू लिटिल बर्निंग टिंगलिंग सेंसेशन, राइट। सो एप्पल साइडर अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसे डाइल्यूट करके अपने चेहरे को एज ए टोनर करें, और आंखों पे ना लगाएं। आंखों पे ना लगाएं। दूसरी चीज, उसे आपको रिंस ऑफ करना पड़ेगा, राइट, बिकॉज उसमें खटास है ज्यादा, क्योंकि रोज वाटर को तो आप छोड़ भी सकते हैं। जी। और एक अच्छा टोनर वो है जो आपके पोर्स को वापस श्रिंक कर रहा है, जिसे जो आपकी रेगुलर रिजीम में है, आप उसे एक स्प्रे बॉटल में मिस्ट करें, बस छोड़ दें। एंड उसके बाद आप एक अच्छा अपना डे क्रीम जिसमें सनस्क्रीन हो, या एक अच्छा मॉइस्चराइजर, और उसके बाद सनस्क्रीन लगाएं। इसके अलावा द बेस्ट थिंग फॉर योर ब्लेमिशेस इज विटामिन सी। आजकल हर जगह पे विटामिन सी प्योर फॉर्म में ड्रॉपर बॉटल्स में मिलता है। तो आप जो भी मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, डे टाइम में मॉर्निंग में उसकी कुछ बूंदे डाल के आपने त्वचा पे लगाएं। मॉइस्चराइजर से पहले, मॉइस्चराइजर के साथ भी मिला सकते हैं, उससे पहले भी कर सकते हैं। ये हम रेकमेंड करते हैं कि लोग अलग अलग लेयरिंग करना नहीं पसंद करते। सो बेस्ट ये कि आपने एक स्कूप अपने मॉइस्चराइजर का उठाया, उसमें 2-3 बूंद प्योर विटामिन सी, हर जगह अवेलेबल है ऑनलाइन, जस्ट सी pure form of like 20% or 10% of vitamin C, put it in your moisturizer and put it on your skin. आप देखेंगे विटामिन सी माना गया है कि आपकी त्वचा को ब्राइटनिंग देता है, वो मेलेनिन की एक्टिविटी को कम करता है और सीधा जाके मेलेनोसाइट्स की एक्टिविटी को पैसिफाई करता है ताकि और मेलेनिन ना बने। लेकिन मेक श्योर आप कुछ भी लगा रहे हैं, अगर आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं वापस पिगमेंट आता है। सही बात है। सो सनस्क्रीन इज द मस्ट, इट्स मैंडेटरी, इसे आपने नहीं भूलना। सो कई बार बहुत ज्यादा ड्राई स्लगिश स्किन होती हैं। अब जैसे हम देखते हैं लीव्स, पत्तियां,
तो पत्ती जब सूख रही होती है तो काली 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 पड़ते पड़ते बिल्कुल डार्क कलर में हो जाती हाँ है। जी। लेकिन एक पूरी लाइव पत्ती जो है उसमें सॉफ्टनेस कितनी है, हाइड्रेशन कितना है, उसके रंग कितने ब्राइट होते हैं, या राइट। ये बिल्कुल। आपकी त्वचा भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं एक पत्ती के साथ। सो आपको अगर आपको लगे कि आपकी त्वचा डिहाइड्रेट हो रही है, जल रही है, आप हर वक्त एसी में हैं या आप हीट में हैं, आपकी ह्यूमिडिटी के लेवल्स कम है, तो एयर ह्यूमिडिफायर एक अच्छा ऑप्शन है आपके स्किन के लिए अगर आप अपने घर में हमेशा इसे ऑन रखते हैं। प्लस हाइलोरॉनिक एसिड्स। ओके। सो ये त्वचा के अंदर कुदरती तौर पे हमारी स्किन के सेल्स ही बनाते हैं ताकि त्वचा में एक फर्मनेस रहे, एक जो लाइक कुशनिंग इफेक्ट होता है वो रहे। लेकिन बहुत ज़्यादा हीट, गर्मी और ह्यूमिडिटी ना होने से कई बार ये, और एज के कारण ये इसकी प्रोडक्शन स्किन के अंदर हाइलोरॉनिक की कम हो जाती है। ओके। तो ये भी ऑनलाइन अवेलेबल है, इसकी भी कोई ऑनलाइन इंडिकेशंस लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि हमें ये नहीं करना, इस स्किन पे नहीं करना। इट्स बेसिकली जस्ट द हाइड्रेशन। सो आप थोड़ा सा ये भी अपनी डेली लाइफ में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। पानी, देखिए बहुत लोग कहते हैं मेरे को, मैं बड़ी रियल फैक्ट्स पे काम करती हूँ, पानी जो पी रहे हैं पानी आपकी बॉडी में लग रहा है, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। आपके पास एक अलार्म होना चाहिए, ड्रिंक वाटर हर 1 घंटे में, और 1 लीटर पानी पिए। सो ये आपके बॉडी के इंटरनल प्रोसेसेस को फाइन करता है, टॉक्सिन्स को निकालता है, आपकी ड्रेनेज सिस्टम को भी अच्छा रखता है। सो इट्स गुड फॉर बॉडी। बट ये एक मिथ है कि पानी पीने से आपकी त्वचा की हाइड्रेशन के लेवल वो होते हैं। आप करके देख लीजिए, मेरे पास एक्सेस डिहाइड्रेटेड स्किन्स आती हैं, मैं 12 ग्लास पानी पी गई, मैंने 10 लीटर पानी पी लिया, मैं बहुत पानी पीती हूँ, मेरी त्वचा फिर भी क्यों इतनी झुर्रियाँ पड़ रही हैं, या मेरी त्वचा क्यों इतनी डिहाइड्रेटेड है? क्योंकि आप कुछ भी इनटेक कर रहे हैं, अगर खा रहे हैं, संतरा खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, वो पहले आपकी बॉडी की फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट्स के फुलफिलमेंट में काम आता है। जो आपकी त्वचा है, लार्जेस्ट ऑर्गन है, उसकी बहुत लाइक रिक्वायरमेंट्स हैं। हाँ जी। उसकी अपनी एब्जॉर्प्शन लेवल्स हैं। सो इट हैज टू बी सुपरफिशियली ऑन द स्किन टू गिव रिजल्ट्स देयर एंड देन, राइट। ऑफ कोर्स डाइट मैटर्स अ लॉट, डाइट ही सब कुछ है, राइट। डाइट, आपकी सोच बहुत मैटर करती है, लेकिन आपकी त्वचा के ऊपर डायरेक्ट कांटेक्ट में जो प्रोडक्ट आएगा वो आपको वहीं पे रिजल्ट्स देगा। बिल्कुल। सो यू डोंट हैव टू वेट कि मैं 1 साल तक इतना पानी पिया, 1 साल तक रोज एक एप्पल खाया, रोज मैंने इतनी बेरीज खाई तो मेरी स्किन। आई थिंक त्वचा को जो स्किन को ट्रीटमेंट देना या उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना, अगर उस पर कोई प्रॉब्लम है, डाइट तो हम ले रहे हैं रेगुलरली, वाटर भी हम अच्छा ले रहे हैं, ये उसी तरह से काम करता है जिस तरह से कोई लोहे की चीज़ रखी जाए और उसको हिलाया ना जाए, क्लीन ना किया जाए, उस पर जंक लग जाता है। आई थिंक स्किन का भी उसी तरह से, अगर उसको मेंटेन नहीं करेंगे, उसको पॉलिश नहीं करेंगे, उसको हवा नहीं लगवाएंगे, उसको लाइक ऑयली नहीं रखेंगे, तो वो भी इसी तरह से खराब हो जाएगी। कितने लोग बोलते हैं आज मैं फेशियल कराने आ गई, आज मेरा चेहरा अच्छा लग रहा है, अब ये ऐसे ही रहेगा? तो मैं कहती हूँ आप रोज खाना खाते हैं, मेंटेन करना पड़ेगा। आपको रोज भूख लगती है, आप फिर खाना खाते हैं, आप उसे निकाल देते हैं, फिर आपको भूख लग जाती है। हाँ। तो त्वचा ऐसी है, इसके सेल्स रोज बन रहे हैं, बिल्कुल, इसके अंदर पूरी सिस्टम्स चल रहे हैं, ये एक जिंदा ऑर्गन है, तो इसकी भी लाइक कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, या पूरी सर्विसिंग आपको टाइम टू टाइम करानी पड़ेगी, सो दैट आपके डेड स्केल्स निकाल दें, फालतू ऑयल निकाल दें, ज्यादा से ज्यादा पानी डाल दें, विटामिन्स डाल दें। मसाज करते हैं तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, लिम्फ बढ़ता है, उससे आपके त्वचा के सेल्स एक्टिवेट होते हैं। कोलेजन बहुत अहम रोल अदा करता है स्किन में, राइट। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें जो हैं वो तभी पॉसिबल हो सकती हैं अगर आप हर चीज़ को बैलेंस्ड में रखें। डाइट भी आपकी अपनी जगह बैलेंस्ड होनी चाहिए, आपकी स्किन की केयर भी अपनी जगह ज़रूरी है। ये नहीं कि मैं अच्छी डाइट खा रही हूँ, पानी अच्छा पी रही हूँ तो मेरी स्किन अच्छी हो जाएगी, कोई बात नहीं, फेशियल नहीं करवाया या स्किन की केयर नहीं की, या जो रिंकल्स के लिए या पिगमेंटेशन के लिए या ब्लेमिशेस के लिए जो ट्रीटमेंट है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ये सब सोचने से नहीं होता, हर चीज़ जो है हमारी ज़िंदगी में एक ख़ास अहमियत रखती है। थैंक यू अवलीन अगेन, और आने वाले समय में हम चाहेंगे और दूसरे टॉपिक पर चर्चा की जाए, और वो टॉपिक क्या होगा वो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को आज की ये बातें अच्छी लगी, और कोई भी कंसर्न है, कोई भी प्रॉब्लम है आपके साथ भी, तो आप ज़रूर हमें मैसेज करें और हम आपकी बात का जवाब देंगे। या आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप डिस्कस कर सकते हैं अवलीन के साथ। अवलीन, थैंक यू अगेन बहुत सारा कि आप आए, और जाने से पहले क्या कहेंगे? खुश रहिए। द ओनली ब्यूटी मंत्रा आई हैव, हर रोज़ अपने आप को थैंक्स किया। आपने शुरुआत बहुत अच्छी की थी कि जो है वो रब की रज़ा, जो नहीं है वो भी रब की रज़ा। बिल्कुल, क्या मालूम कि रब को पता है हमारे लिए क्या बेहतर है। हाँ। सो आपके पास जो भी है, थैंक यू गॉड
कि आपने मुझे एक अच्छी स्किन दी, एक अच्छा बॉडी दिया, हाथ पैर सही सलामत दिए, एक परिवार दिया, एक अच्छी कंट्री दी। बिल्कुल। हम कितने ब्लेस्ड हैं, सिर्फ ये फीलिंग ही अगर आपके पास हमेशा हो कि हम कितने ब्लेस्ड एंड थैंकफुल टू गॉड, Yeah. एंड उसी के साथ आपके त्वचा के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर एक डिफरेंट एनर्जीज फ्लो होंगी बिल्कुल। और आपकी सोच उसको रिफ्लेक्ट करेगी। बिल्कुल आपने सही कहा। थैंक यू अगेन अवलीन आने के लिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू। तो अगर आपको किसी तरह की भी कोई जानकारी चाहिए या आप बात करना चाहते हो तो अवलीन जी का नंबर हमारी स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा और आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं या आप मुझसे भी इनका नंबर ले सकते हैं और हमें मैसेज भी भेज सकते हैं। सांझा पंजाब टीवी की हमेशा कोशिश रहेगी आपको प्रोफेशनल्स के साथ मिलवाने की, एंटरटेनमेंट देने की, खूबसूरत न्यूज़ देने की और कंट्रोवर्सी से हम थोड़ा सा दूर रहते हैं। सिर्फ हम बिलीव करते हैं एंटरटेनमेंट और नॉलेज। सो खैर आप अपना ध्यान रखें, बहुत सारा रूल्स को फॉलो करें क्योंकि कोविड अभी भी नहीं गया, उसको हमें फॉलो करते रहना है जब तक कि पूरा ख़त्म ना हो जाए। और अपना ध्यान, अपने आप से प्यार ज़रूर करें। किसी भी तरह की कोई जानकारी लेनी है, एज ए स्पॉन्सर आपने हमारे साथ जुड़ना है। हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे पैकेजेस हैं कि हम आपके बिज़नेस को बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं, उनके कमर्शियल्स बनाकर वर्ल्ड वाइड हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या हमारे टीवी चैनल्स हैं, हमारे उन सब पे हम आपको अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं ताकि आपका बिज़नेस ग्रो करे। क्योंकि हमें पता है कि कोविड के दौरान बहुत सारे बिजनेसेस अफेक्ट हुए हैं और हर इंसान इसी सोच में है कि मेरे बिज़नेस का क्या होगा और कैसे चलेगा। सो आप हमारे साथ मिलें, बात करें, हम आपके हिसाब से, आपके मुताबिक, आपकी जेब के मुताबिक आपका जो एक अच्छा पैकेज तैयार कर सकते हैं आपके बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए। मेरा नंबर है 6478987769। बॉब दसान जी का नंबर है 4164197777। सांझा पंजाब टीवी के ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और मुझे भी आप सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए। वापस फिर हाजिर होंगे खास मेहमान के साथ, खास चर्चा के साथ। आप रखें अपना बहुत सारा ध्यान और देखते रहे सांझा पंजाब टीवी हमारे साथ। आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। लाइव दिल दियां गल्लां करो दिल खोल के मेरे नाल। जी हाँ, तुसी जुड़े रहो मेरे नाल ऑन सांझा पंजाब टीवी, दिल खोल के बोल।